عاشق نبی کی یہی پہچان ہے کہ وہ ہٹتا نہیں ہے، جلسوں میں ڈٹتا ہے نا۔ میرا غریب نواز آیا، کتنے ہٹانے والے آئے، اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، ہٹ جاؤ۔ آنا ساگر پر پہرا بیٹھایا گیا، ہٹ جاؤ۔ راجہ کا الٹیمیٹم آیا، ہٹ جاؤ۔ فوج آئی، ہٹ جاؤ۔ پولیس آئی، ہٹ جاؤ۔ لیکن میرا غریب نواز کا کردار یہ بدل رہا ہے کہ جتنے ہٹانے والے آئے وہ خود ہٹ گئے۔ میرا غریب نواز ڈٹ گیا اور آج بھی ڈٹا ہوا ہے۔ ڈٹ کر ہم دیوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، نبی کا دیوانہ ہٹتا نہیں، ڈٹتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے عاشقوں کے 3 پنے ہوتے ہیں، زلف لبے، کپڑے پھٹے یا جلسوں میں ڈٹے ہوتے ہیں۔ مانا کپڑے نہیں پھٹے، زلفیں نہیں، لیکن ڈٹے رہیے، ہے نا۔ میرا غریب نواز آج بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کسی نے کہا بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں بدلا۔ اور دلی کے منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، دلی کے منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں۔ اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہیں آیا، دلی کے منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ آپ اپنے دلوں میں عشق رسول کا جلوہ بسا کر بیٹھے ہیں، محبت رسول کا جلوہ اپنے قلب و جگر میں سجائے ہوئے ہیں، اور اس کی پہچان یہی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب مہک بلرام پوری صاحب نعت پڑھے تھے، نوٹوں کی بوچھار کر رہے تھے آپ لوگ، بھیا سیٹی نہ ہونے، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ جن کی تقریر سننے کا ہم لوگوں کا اصل مقصد تھا اب وہ حاصل تقریر ہو چکی ہے۔ آپ یہ نہ خیال کرنا کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا، بحصول برکت کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ میں آپ کے جذبہ محبت کو سلام کرتا ہوں، آپ کے عشق کی جولانیوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کے حوصلوں کی بلندی کو سلام کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب مہک بلرام پوری صاحب نعت کے اشعار گنگنا رہے تھے تو ہمارے نوجوان بچے بھی دوڑ دوڑ کے نوٹوں کی بوچھار کر رہے تھے، ہمارے بزرگ جھوم رہے تھے، مست ہو رہے تھے۔ یہی سچے عاشق کی پہچان ہے کہ جب اپنے آقاؤں کا ذکر سنتا ہے تو مچل جاتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ آپ نہیں جھومتے ہو، یہ دل جھومتا ہے، آپ نہیں بے قرار ہوتے، یہ روح بے قرار ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ذکر مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، آپ نہیں مچلے، یہ روح مچل رہی ہے۔ ذکر مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، ذکر مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے تو عاشقوں کے چہروں سے روشنی نکلتی ہے اور ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی ہے۔ تو یہ بڑی محترم، بڑی باوقار، بڑی باعزت محفل ہے۔ خوش نصیب ہیں، لکی مین ہیں، بھاگیشالی ہیں آپ حضرات کہ اس محفل میں، اس سبھا میں، اس فنکشن میں آپ حضرات تشریف لائے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس فنکشن کا کنیکشن، اس سبھا کا سمبند، اس مجلس کا لگاؤ، اس محفل کا تعلق تاجدار مدینہ، کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ نوٹنکی کی مجلس نہیں ہے، یہ بڑی محترم باعزت محفل ہے نا۔ یہ محفل محبوب خلاق دو عالم ہے، قرینے سے یہاں آؤ، یہاں ایمان سمرتا۔ تو میں تھوڑا پیغام ان لوگوں کو دوں گا جو ننگے سر ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنے سروں کو چھپا لیں، کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے نا۔ شاید کہتا ہے زمین نم ہو تو صحرا نہیں اچھا لگتا، زمین نم ہو تو صحرا نہیں اچھا لگتا، اور باڑھ آئی ہو تو دریا نہیں اچھا لگتا۔ زمین نم ہو تو صحرا نہیں اچھا لگتا، اور باڑھ آئی ہو تو دریا نہیں اچھا لگتا۔ تم مسلمان ہو سر ڈھانپ لو اپنا یارو، ہم کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا، پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا۔ اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے، رومال نہیں ہے تو
तौलिया नहीं तो पड़ोस वाले से मांग के अपने अपने सरों को छुपा दे। मोहतरम साईं, किसी ने कहा अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है, अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है, अजान ऐसी नबी का बिलाल देता है। और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। और सुनिए, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। और अली का जिक्र, अली का जिक्र, अली का जिक्र लहू का उबाल देता है। अली के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक और अली का जिक्र लोगों को उबाल देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ ऐ गाफिल, अली के जिक्र को अदना न समझ ऐ गाफिल। अरे अली तो वो है, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है, फना को रश के मौका में उतार देता है, ये मैं कदों के मुकद्दर संवार देता है। और परखना है अगर किसी को या अली कहे, परखना है अगर किसी को या अली कह दो, ये वो अमल है, ये वो अमल है। अगर किसी को या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल दे। हक है, सुभान अल्लाह। खुतबे मसनूना के बाद आयत मुक़द्दसा का मैंने तिलावत किया। रब फरमाता कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे तरफ तुम्हारे रब की जानिब से मोजज़ा आ गया। तमाम अंबिया का जब जिक्र हुआ तो ये हुआ कि वो मोजज़ा लेकर आए। हजरत ईसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मोजज़ा लेकर आए। मूसा बिल बैयिनात कुरान अज़ीम में आया। जब और नबियों का जिक्र हुआ तो ये हुआ कि ये नबी मोजज़ा लेकर आए, लेकिन जब मेरे आका की आमद का जिक्र हुआ तो रब फरमाता है मुजस्सम मोजज़ा आ गया। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, चमकता हुआ नूर सिराजम मुनीरा कह करके पुकारा गया। मुझे हैरत होती है सिफात मेरे आका के जो कुरान अज़ीम में रब ने बयान किया है, दूसरे धर्म की धार्मिक पुस्तकों में भी इसी नाम से आया। उन्होंने भी मेरे आका को सिराजम मुनीरा कहा, सूर्य मंडलम कहा, प्रजा धनुत्रक्षित परपारण सुमंडलम, प्रजा के धन का रक्षक होगा यानी अमीन होगा, सादिक होगा। सुमंडलम चमकता हुआ सूरज होगा, सिराजम मुनीर होगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक तआला फरमाता मुजस्सम मोजज़ा, यानी आपका चलना फिरना, सोना जागना, उठना बैठना, आपकी हर अदा हर किरदार मोजज़ा है। बल्कि कहने दिया जाए मक्के की सरजमीन में आपका तशरीफ लाना भी मोजज़ा है। क्यों मोजज़ा है? इसलिए अगर मेरे आका पढ़े लिखे माशरे में तशरीफ लाते, आज दुनिया यही कहती ये पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब माशरे का असर था जो इस्लाम इस तरह पूरी दुनिया पर गालिब आ गया। रब तबारक व तआला अपने महबूब को ऐसी सरजमीन पे भेज रहा है जहाँ की जमीन पत्थर की, सड़कें पत्थर के, मकान पत्थर के, दरो दीवार पत्थर के, इंसान पत्थर के, उनके दिल पत्थर के, उनके दिमाग पत्थर के, पत्थर दिल को मोड़ कर देना, ये मुआजिज़ा। आज आप समझें कि हमारे कौम के इन नौजवान बच्चों ने ये महफिल रचाई, हमारे बुजुर्गों ने इसको रौनक बख्शी, आप लोगों की हिमायत रही।
आप लोग इकट्ठे हुए है ना। अगर इस महफिल में हमारे मास्टर साहब जैसे जी होश लोग, डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, अक्लमंद लोग हैं, हमारी बातें हो रही हैं, आप समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, हमारा हौसला भी बुलंद हो रहा है ना। लेकिन अगर हमारे ये कमेटी के लोग है ना मुझे बुलाकर चंद पागल और दीवानों को बिठा देते और कहते हजरत तकरीर कीजिए, तो मैं क्या कहता कि मैं कोई पागल हूं कि पागलों को सुनाओ, कोई दीवाना हूं कि दीवानों को सुनाओ। तो हमारे फैसल ने दामन पकड़ लिया कि हजरत अरे समझे हुए को तो हरेक समझा देता है, पढ़े हुए को तो हरेक पढ़ा देता है। कमाल जब होगा कि जब तकरीर दीवानों में हो उसे फरमाना बना दिया जाए, तकरीर पागलों में हो अक्लमंदों को भाई कर दिया जाए। तो मैं क्या कहूँगा जनाब, ये मेरे तकरीर का कमाल नहीं हो सकता, ये किसी वली की करामत या नबी का मौजूदा हो सकता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाना भी मौजूदा है, इसलिए कि आका ऐसी जमीन पे आ रहे हैं जहाँ सब पत्थर ही पत्थर हैं, उनके दिल भी पत्थर हैं, दिमाग भी पत्थर हैं। और ये मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा, बल्कि वहाँ की हिस्ट्री की रीडिंग कीजिए, वहाँ के इतिहास का अध्ययन कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि कैसे पत्थर दिल लोग थे, कैसे पत्थर मिजाज लोग थे। अपने गोद की पली हुई बच्ची को गड्ढा खोदकर अपने हाथों से जिंदा दफन कर देना, बोलो ये दिल पे पत्थर है कि नहीं। अपनी शहजादी बहू बेटी को शौहर का साया उठ जाए तो उसको माशरे में अभागन बना देना, अक्ल पे पत्थर है कि नहीं है। मेरा नबी ऐसे माहौल में तशरीफ ला रहा है जहाँ बच्चियां दफनाई जा रही हैं, बेवाओं का सुहाग उजाड़ा जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीवानों को इकट्ठा करके फरमाते हैं, लोगों बच्चियां इसलिए नहीं है कि उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। सुनो, जिनके घर 3 बच्चियां हों, मोहब्बत से उनकी परवरिश करें, उनके लिए जन्नत है। एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह जिनके घर 2 बच्चियां हों, मेरे आका फरमाते हैं मन और जारियतैन हत्ता दमुहा काना हुआ वहाना हाकमा यौम क़यामा व रमा असहाबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जिनके घर 2 बच्चियां हों, मोहब्बत से उनकी परवरिश करें, उन्हें रुखसत कर दे, उसके लिए जन्नत है। वो मेरे साथ होगा जैसे मेरी 2 उंगलियां मिली हैं। नबी का साथ जन्नत में हो, नबी का पड़ोस जन्नत में हो, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। कौम बनु इसराइल की एक बुढ़िया 450 साल से यही तमन्ना पाले हुए थी कि अल्लाह के नबी के पड़ोस में काश मुझे जगह मिल जाए। हुआ यूं कि हज़रत मूसा कलीम जब कौम फिरौन से निजात पाकर मिस्र में दाखिल हुए, रब तबारक तआला ने फरमाया, ए मेरे करीम जब तुम मिस्र में दाखिल हो सबसे पहला तुम्हारा काम ये होगा कि तुम ताबूत यूसुफ को तलाश करना और कनान में उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर देना। अब हज़रत मूसा कलीम आए, पूछने लगे कि मज़ार यूसुफ का किसी को पता मालूम है। तो 400 साल का अरसा गुजर चुका था, कोई उस वक्त मौजूद ही न था। तलाशते गए तो एक बुढ़िया थी 450 साल की, पता चला उसे मालूम है। तो आप गए, कहने लगे, ए माँ तुझे मज़ार यूसुफ का पता मालूम है? कहा हाँ मालूम है। कहा मुझे बता दे। कहा मैं कैसे बताऊं, मेरे तो आंखों की रोशनी चली गई, मेरे आंख की रोशनी लौटा दो, मैं मज़ार यूसुफ का पता बता दूंगी। हज़रत मूसा कलीम ने रब की बारगाह में दस्त दुआ बुलंद किया, फरमाया मौला मौला ये बुढ़िया आँख की रोशनी मांग रही है। रब तबारक तआला ने फरमाया मेरे कलीम मेरे यहाँ कमी किस बात की है, उसके हाथ आँखों पे हाथ रखना मेरा काम और आँख की रोशनी लौटाना तेरा काम। आज कुछ लोग कहते हैं हर काम अल्लाह ही करता, अल्लाह ही करता। मैं कहता हूँ अल्लाह ही करता है, अपने महबूबों के वसीले से करता है। हज़रत मूसा ने जैसे ही उसके आँखों पे हाथ रखा रोशनी आ गई। कहा अब आंखें रोशन हो गई, चल मज़ार यूसुफ का पता बता दे। उसने कहा बुढ़ापे से मेरी हड्डियां इस कदर कमजोर हो गई कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह के करीम मज़ार यूसुफ का पता कब बताऊंगी, मेरी जवानी लौटा दो तब बताऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला 450 साल की बुढ़िया जवानी मांग रही है,
जवानी मांग रही है। रब ने फरमाया मेरे कलीम उसके सर पे हाथ रखना तेरा काम, और 450 साल की बुढ़िया तक जवानी लौटाना मेरा काम। जैसे हजरत मूसा ने उसके सर पर हाथ रखा, बुढ़िया जवान हो गई। अब जब जवान कहा चल बता दे, अब सोच में पड़ गई क्या किसी अल्लाह वाले के मज़ार का अगर किसी को पता मालूम हो तो कितना बड़ा फायदा होता है। अगर मज़ार यूसुफ का पता मालूम ना होता, 450 साल की उम्र में आग की रोशनी न मिलती और जवानी न लौटती, लेकिन तू तो पागल है, तू तो खाली दुनिया मांग रही है। जब मज़ार यूसुफ का फैज़ जारी है तो आखिरत क्यों नहीं मांग लेती? वो कहती हज़रत मूसा कलीम से एक शर्त और है। आप फरमाते हैं माँ कितने शर्त मनवावेगी? कहा बस एक शर्त। कहा बता वो क्या है? कहा मेरी आरज़ू ये है कि जन्नत में जहाँ आपका महल हो उसी पड़ोस में इस बुढ़िया की भी कुटिया हो। फिर हज़रत मूसा ने दस्ते दुआ बुलंद किया। रब तबारक तआला ने फरमाया मेरे कलीम मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, दुआ के लिए हाथ उठाना तेरा काम और जन्नत में महल बनाना इस बुढ़िया के लिए मेरा काम। कहने का मतलब यह है कि जन्नत में नबी का पड़ोस मिल जाए कितनी बड़ी खुशनसीबी है। मुद्दतों से वो तमन्ना पाले हुए थी कि नबी के पड़ोस में हमें जगह मिल जाए, लेकिन प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, नाज करो अपनी मुक़द्दर पर। मेरे आका करीम खुद ही बिना मांगे जन्नत दे रहे हैं। फरमाते हैं माला जारियतैन, जिसने अपनी 2 लड़कियों की परवरिश की, हत्ता तबलगा, यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, उन्हें रुखसत कर दिया। तो आका फरमाते काना अना वो हवा हाकज़ा यौमल क़यामा। फरमाते वो इन 2 बच्चियों का पालने वाला और मैं क़यामत के दिन इसी तरह हूँगा। ज़म्मा साबिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाई और फरमाया जैसे मेरी दोनों उंगलियां मिली हैं ऐसे 2 बच्चियों का पालने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो एक साहबी ने कहा रसूलल्लाह एक ही बच्ची हो, कहा उसके लिए भी जन्नत। फरमाया अगर बच्चियां ही न हो तो फरमाया जिसके घर बच्चियां ना हो, मेरे नबी ने किसी को महरूम नहीं किया। फरमाया जिसके घर लड़की ना हो दूसरों की बच्चियों को मोहब्बत से देखा करे उसके लिए भी जन्नत है। तो उसी मजमे में एक बच्ची लाई गई जिसके वालिदैन नहीं थे, मेरे आका की झोली में डाल दी गई। फरमाया या रसूलल्लाह इसको किसी की कफालत में दे दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया कौन है जो इस बच्ची की कफालत करके जन्नत का हकदार बन जाए? तो उस वक्त सदाकत के ताजदार खड़े हुए, दामन फैला दिया, मौला माका ये बच्ची मुझे दी जाए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये तो तुम सदाकत के ताजदार, ये मकाम किसी और का है। हज़रत उमर खड़े हुए, फरमाया ए अदालत के ताजदार ये मकाम किसी और का है। उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये बच्ची मुझे दी जाए। आका फरमाते हैं सखावत के अलमबरदार ये मकाम किसी और का है। हज़रत अली शेर खुदा खड़े हुए, आका फरमाते हैं ए शिजाअत के शहसवार ये मकाम किसी और का है। उसी मजमे में एक सहाबी थे जिनका नाम अबू कैस था, वो बिल्कुल पीछे खड़े थे। खड़े हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह ये बच्ची मुझे दी जाए। मेरे आका फरमाते हैं अबू कैस ये बच्ची तुम्ही को दी जाएगी, लेकिन इस कदर रो क्यों रहे हो, बेकरार क्यों हो रहे हो, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? अबू कैस कहता है या रसूलल्लाह रो इसलिए रहा हूँ कि आप पर ईमान लाने से पहले जहालत के वक्त में हमने आज से पहले अपनी पैदा की हुई 10 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, इसलिए रो रहा हूं या रसूलल्लाह काश ये बच्ची मुझे मिल जाती, मैं इसकी परवरिश करता तो शायद उन 10 बच्चियों के गुनाह का कफारा हो जाता। मेरे लोग ये तारीख हैरान है कि ये इंकलाब कैसे आ गया। वो लोग जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किया करते थे दूसरों की बच्चियों पे निछावर होने लगे। किसी ने कहा है ये बिजली का करका खाया सोते हाथी अगर की जमीन जिसने सारी हिला दी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने पत्थर दिल को मोम किया, ये नबी का मोजज़ा है ना। और शोहर मर जाता उसको माशरे में भागर बना दिया जाता, घर के बाहर कर दिया जाता, उसका चेहरा देखना है समझा जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेवाओं के इस दुख भरे हालात का जायजा लिया, मेरे दोस्त मैं पूछना चाहूंगा
میرے نبی کے لیے عورت کی کوئی کمی تھی؟ اشارہ کر دیتے جنت کی حوریں آتی، لیکن میرے آقا کی نظر جب جہالت کے معاشرے کے بنائے ہوئے منفرد کارنوں پر پڑا، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، وہ دنیا کا خوبصورت نوجوان جن کے حسن کی پہلوؤں پر جنتی حوریں قربان ہو، ایک 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے جہالت کے نظام کو توڑ رہا ہے۔ اے لوگوں، جس عورت کو تم نے معاشرے میں عادت بنا دیا تھا، تمہارا نبی سہاگ عطا کر رہا ہے، اور سہاگ نہیں، جن کے وقار کو تم نے ختم کر دیا تھا، تمہارا نبی ان کے وقار کو بلند کر رہا ہے۔ کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا، رب کا کلام جن کے مدح کے خطبے پڑھ رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارے مقام کی بلندی پر دنیا کی کوئی عورت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میرے دوست، پتھر مزاج کو بدلا میرے نبی نے، صرف عرب کا ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کی کیا گتی تھی، اس بھارت کی کیا استھتی تھی، شوہر مر جاتا، اس کے چتا پر اس کی بیوہ کو زندہ جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، ہزاروں سال کا یہ نظام چلا رہا تھا، یہ جاگرتی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ لارڈ ولیم بیلٹنگ جیسے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ راجہ رام موہن رائے جیسے لوگ ستی پرتھا کے خلاف سنگھرش کرنے والے کہاں سے آئے؟ کب آئے؟ کیوں آئے؟ تو میرے دوست، جب تک میرے نبی کا پیغام نہیں آیا تھا ہندوستان میں، تب تک بیوائیں چتاؤں پہ جلائی جا رہی تھی، لیکن جب میرے آقا کا پیغام ہندوستان کی زمین پر آیا، ہندوستان کے لوگوں نے دیکھا کہ بیوہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو چتاؤں پہ جلا کے راکھ کر دیا جائے، کائنات کا سردار بیوہ سے شادی کر کے سہاگ عطا کر سکتا ہے، تو بیواؤں کو چتاؤں سے جلایا بچایا جا سکتا ہے، انہیں سہاگ عطا کیا جا سکتا ہے۔ ستی پرتھا کے خلاف سنگھرش شروع ہوا، بیوائیں چتاؤں سے جلن سے بچائی جانے لگی، تو ایک بیوہ نے بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے نا، پورے ملک پر حکومت کر کے دکھا دیا۔ جس دن فیروز گاندھی مرا تھا، اندرا کو اسی دن اس کے چتا پہ جلا کے راکھ کر دیا گیا ہوتا، لیکن یہ کرم ہے میرے نبی کا، میرے دین کا فیضان جب ہندوستان میں آیا تو اندرا جیسے بیواؤں کو اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا، ایسی حکومت کر گئی جب سے بھارت آزاد ہوا، کوئی ایسی حکومت کر ہی نہیں۔ تو میرے دوست، میرے آقا کا مکے کی سرزمین پر تشریف لانا بھی معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے بیہقی نے اور امام ترمذی نے، ابو نعیم نے، حاکم نے اپنے مسند میں ارباز ابن ساریہ سے اور حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب حبشہ پر سیف ابن ذی یزن کا غلبہ ہوا، یمن کا رہنے والا تھا، قریش کے ننیحالی رشتے سے قبیلے بنو جرہم سے اس کا تعلق تھا۔ قریش والے ایک وفد کی شکل میں حبشہ سیف ذی یزن کو مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ جب دربار میں داخل ہوئے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا بھی انہوں میں شامل تھے۔ جیسے انہوں نے قدم رکھا، بادشاہ شیخ ذی یزن نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا، تخت سے اتر پڑا، آپ کے پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ شیخ ذی یزن کو عبد المطلب اور تمام عمائدین قریش نے بادشاہت کی مبارکباد دی، اور عبد المطلب نے جب مبارکباد دینا شروع کیا تو شیخ ذی یزن کہتا ہے، اے مکے کے سردار، آپ مجھے حبشہ کی بادشاہی کی مبارکبادی دے رہے ہیں، میں آپ کو پوری دنیا کی بادشاہی کا مبارکباد دے رہا ہوں۔ تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ کہا سنو، تمہاری پیشانی میں جو جلوہ چمک رہا ہے یہ اللہ کا آخری پیغمبر کا جلوہ ہے، اور ان کی بادشاہی، ان کی سرداری پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ قائم کرے گا اور قیامت تک قائم کرے گا۔ فرمان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ کہا
बाप की पुष्ट से माँ के शिकम में आएंगे, बाप का साया उठ जाएगा। दूध पीने का जमाना खत्म होगा तो माँ का साया उठ जाएगा। पूछा वो क्यों? साया ही नहीं होगा। कहा साया माँ बाप ही का नहीं, किसी शय का भी साया ना है। मेरे आका तशरीफ लाए तो दुनिया ने देखा कि बाप का भी साया नहीं, माँ का भी साया नहीं, कोई भाई बहन का भी साया नहीं, दुनियावी जाहो हशम का साया नहीं, किसी शय का साया नहीं। अब गौर करें ये साया क्यों नहीं? पुष्प एक किधर से शिकमे मादर में आते हैं, बाप का साया उठा लिया जाता है, इसलिए कि रब को यह मंजूर न था कि अब इस पुष्प से कोई दूसरा बच्चा पैदा हो जो मेरे महबूब के भाई बनने का दावा है। दूध पीने का जमाना खत्म हुआ, माँ का भी साया उठा लिया गया कि अभी शिकम में जिसमें मेरा महबूब रहा है कोई दूसरा बच्चा न पैदा हो जो भाई बनने का दावा करे। तो रब को ही मंजूर न था कि मेरे महबूब का कोई भाई हो, इसलिए बाप का भी साया उठाया गया, माँ का भी साया उठाया गया, है ना। और एक बात गौर करें, कभी जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना, उनमें भी फर्क होता है चाहे 5 मिनट का। तो आप ये गौर करें जो 5 मिनट बाद आता है वो जिंदगी भर छोटा कहा जाता है, जो 5 मिनट पहले आता है वो जिंदगी भर बड़ा कहा जाता है। क्या मतलब? यानी 5 मिनट बाद आने वाला 5 मिनट पहले आने वाले की बराबरी का दावा नहीं कर सकता। और ये खन्नास 1400 बरस बाद आकर बराबरी का दावा कर रहे हैं। इनके आंखें पे ये पत्थर है कि नहीं है? लेकिन सुनिए, एक चीज बराबरी का दावा कर सकती है, वो क्या है? साया। साया समझते हो? वो नहीं जो औरतें साड़ी के नीचे पहनती है, परछाई, है ना। तो साया जो है ये तो कर सकता है बराबरी का दावा ना, कि जो पैदा होने का वक्त तुम्हारा वही हमारा, जो टाइम तुम्हारा, जो दिन, जो तारीख तुम्हारी वही हमारी, है ना। तो भाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस्म का साया तो बराबरी का दावा कर सकता था। रब ने अपने महबूब के जिस्म का साया भी उठा लिया कि साया भी बराबरी का दावा ना कर सके, साया भी बराबरी का दावा ना कर सके। तो न माँ बाप का साया नजर आ रहा है, न भाई बहन का साया नजर आ रहा है, न जाहो हसन का साया नजर आ रहा है, और न जिसमें अकदस का साया नजर आ रहा है। जिसमें अकदस का साया क्यों नहीं? दूसरी कड़ी जो रब फरमाता है वांज़लना नूरम मुबीना इन्ना अंज़लना लक़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, कि नूरे मुबीन चमकता हुआ नूर हमने तुम्हारी तरफ भेजा। तो जो नूर होता है उसका साया नहीं होता। मेरे आका चूंकि नूर थे इसलिए साया नहीं। लेकिन एक मास्टर साहब एक बात और पूछेंगे कि जनाब आका के सर पर जो अमामा मुबारक था वो तो सूत का था, जो चादरें अनवर की थी वो ऊन की थी, आसा मुबारक तो लकड़ी का था, नालैन मुकद्दस तो चमड़े के थे। इनका साया क्यों नहीं नजर आ रहा था? मेरे आका तो नूर है, साया नजर नहीं आता, लेकिन ये साया वाली चीजों का साया क्यों नहीं नजर आता? तो सुनिए, ये फलसफा है कि साया वाली चीज नूर का साया नहीं होता, जो शायद नूर के दामन में आ जाए उसका भी साया नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक ट्यूबलाइट जल रही है, इसकी रोशनी में सबका साया नजर आता है, लेकिन खुद इसका साया, इसके शीशे का साया नजर नहीं आता। एक ट्यूबलाइट अभी चली ना हो, इसके सामने करोगे उसका साया नजर आएगा, और इसका साया नजर नहीं आता। जब तक जली नहीं थी साया था, जल गई है तो साया गायब हो गया। क्यों? जब तक रोशन नहीं हुई थी, नूर के दामन में नहीं आई थी, अब जब रोशन हो गई है, नूर के दामन में आ गई है, पता चला साया वाली चीज थी, अगर नूर के दामन में आ जाए तो उसका भी साया नजर नहीं आता। मेरे आका चल रहे हैं, अमामा मुबारक सर पर है, नूर के दामन में है, चादरें अनवर कंधे पर है, नूर के दामन में है, असा मुबारक दस्ते नबूवत में है, नूर के दामन में है, नाज़े मुक़द्दस कदम नाज़े मुस्तफा में है, इसलिए नूर के दामन में है। और जब नूर का भी साया नहीं, नूर के दामन में आ जाए उसका भी साया नहीं। इसलिए किसी शय का साया नहीं। लेकिन मास्टर साहब गौर कीजिए, ये कायनात आलम हैरान है, ये कायनात आलम महवे शब्द है कि वो ज़ात जिसका साया नजर नहीं आता, लेकिन जब कायनात की हकीकत पर नजर पड़ती है तो हर शय का वही साया बनता नजर आ रहा है। मुहताजों का भी वही साया, बेसहारों का भी वही साया, बेवाओं का भी वही साया, बेकसों का भी वही साया, बेबसों का भी वही साया,
नजर नहीं आता। नारे छोड़िए सबकी नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा जान रहमत नारे तकबीर नारे रिसालत। जिसका साया है सारे आलम पर उसका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती हैं देने वाला नजर नहीं आता। अब पैदाइश के चंद जुमले बस खत्म है ना। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मेरे आका की आमद होती है। आमना फरमाती हैं खरजा मिन नूरुन व अज़ा अली कसूर शाम, मुझसे एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। सुबह का वक्त है, तमाम हमारी दीन कुरैश सहने काबा में मौजूद हैं। हर एक हैरत का तमाशा बना नजर आ रहा है। जो आ रहा है एक हैरत अंगेज वाकया की मंजर कशी करता हुआ नजर आ रहा है। लोग अंधेरे अंधेरे काबा के दामन में पहुंच जाते हैं ताज़ा ताज़ा वाकया लेकर। एक कहता है कि लोग मेरी माँ एक बुढ़िया थी, बहुत मफलूज कमजोर थी, परसों से वो बिस्तर से उठ नहीं रही थी। आज खुद उसने दरवाजा खटखटाया। खड़ी होकर जब मैंने खोला तो देखा मेरी माँ तंदुरुस्त नजर आ रही है। मैंने पूछा ए माँ ये कौन तबीब आया जो तेरा इलाज कर गया? तमाम हकीमों की हिकमत जड़ी बूटियाँ सब बेसूद हो गई थी, अचानक तेरे बाजुओं में सूखे हुए तनावानाई कहाँ से आ गई? वो कहते अभी अभी मैंने देखा ये मक्के की पूरी आबादी रोशन हो गई और वही नूर की किरण मेरे कमरे में आई। उस नूर की किरण में मैं नहा गई और मुझे तंदुरुस्ती मिल गई। वो शख्स भागा हुआ सहने काबा में आता है, कहता है लोगों मैं पूछना चाहता हूँ ये किस मसीहाए ज़माना की आमद की बरकत के सदक़े हैं कि जिससे बीमारों को तंदुरुस्ती मिल रही है। एक दूसरा आता कहता है मुसलसल 4 सालों के पहले साली से सारे मर्दार सारे चरागाहें सूख चुकी थी। हमारी बकरियां का बड़ा रेवड़ था, खत्म हो चुका था। चंद बकरियां जो मोटी थी वही बची थी, वो भी सूख के लकड़ी हो गई थी। उनका दूध पकड़ के उठाता था तो खड़ी होती थी, धक्का दे के चलाता था तो चलती थी। लेकिन आए लोगों आज जब मैंने बाड़ा खोला तो मैंने बकरियों को तंदुरुस्त तवाना देखा, उनके थन दूध से भरे हुए देखे। ताज्जुब ये है कि एक ही बकरी के दूध से पूरे घर के बर्तन भर गए, बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगा ये कौन से बरकत वाले की आमद का सदका है कि सूखी बकरियां तरोताजा हो रही हैं, उनके थन दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा पहुंचता है लोगों मेरे पास खजूरों को बहुत बड़ा बाग था, कई साल मुसलसल तक तहत साली की वजह से सूख गया, उसके पत्ते झड़ गए थे, उसके तने टूट के गिर गए थे, उसके सिर्फ जड़ों का ठुठ बाकी था। मैं रोज सुबह जाता उन सूखे हुए दरख्तों की जड़ को पकड़कर रोता, अपने मुकद्दर रूठे हुए मुकद्दर पर आंसू बहाया करता था। लेकिन है लोगों हैरत की बात यह है आज जब मैं सुबह पहुंचा तो देखा तमाम सूखे दरख्त हरे हो गए हैं और फलों से लदे हुए नजर आ रहे हैं। ये किस बरकत वाले की आमद का सदका है कि सूखे दरख्त हरे हो रहे हैं, बागों में बहार आ रही है। इतना कहना था कि मक्के की गलियां खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती हैं। सूंघ रही है कैसी दिलपसंद खुशबू है, कैसी दिलपसंद खुशबू है। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये मक्के की गलियां मुश्कबार कैसे हो गई, ये मक्के की गलियां अचानक इत्र बेज कैसे हो गई। लेकिन लोगों ने देखा हज़रत आमना का दरवाजा खुलता है, आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को एक तख्त में सब हरे रेशम में लपेटे हुए खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जिस्म मुअत्तर की खुशबू से पूरी फिजाए काबा मक्का मुअत्तर हो जाती है। ये मेरे आका के जिस्म का मौजज़ा था। आला हज़रत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं गूंजे बसा दिए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब सहने काबा में दाखिल हुए तमाम अमाइदीन कुरैश मौजूद थे। उधर से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बढ़ रहे हैं, इधर से आवाम से आवाज उठ रही है अब्दुल मुत्तलिब अपने कदम रोक लो, अब्दुल मुत्तलिब अपने कदम रोक लो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं सलामी के लिए खाने काबा में अपने इस पोते को लेकर जा रहा हूं, मैं क्यों कदम रोक लूं? लोग कहते नहीं है अब्दुल मुत्तलिब कदम रोक लो, हमारे अकलों को धोखा हो रहा है, हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के कदम काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने कदम फिर रोका, मेरे दोस्त तारीख आलम बताती है काबे की दीवारें झुक जाती है, मेरे आका को सलामी पेश करती है और फरमाते हैं उनकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुझे को झुका और उनकी
सलाम पेश कर रही हैं, मकाम इब्राहिम सलाम पेश कर रहा है, दरख्त के पत्ते सलाम पेश कर रहे हैं, कूचे के पत्थर सलाम पेश कर रहे हैं, सारी कायनात मेरे आका पर दरूद व सलाम के नजराने